Good morning, dear kids. Today I am taking your exercise 17C. In that we have to study a bit about arcs. So before starting the problem number 1, let me explain you two theorems about this. In that, suppose if I have this as a circle, in that we have this as one arc and this as other arc, and the length of these two arcs are same. So if these arcs subtend angle at the center, मतलब angle बना रहे हैं center पे, then these two angles will also be same. So what we can say, if two arcs of the same circle are equal, I'll write it. If two arcs of the same circle are equal, then they subtend equal angles at the center. अगर आर्क्स इक्वल है तो उन्होंने जो सेंटर पे एंगल बनाया है वो भी इक्वल होगा. That means, for example, if I am giving you this 60 degree, so this also will become 60 degree. So in a case, if I give you AB is an arc, O is a center, CD is an arc, O is a center, and AB is equal to CD, then automatically angle AOB will be equal to angle COD. Why? Because if the arcs are same, then the angle subtended by them at the center will be same. Clear? And the vice versa also, the converse also. How converse? मतलब अब मैंने क्या दिया था, आर्क सेम है तो सेंट्रल एंगल सेम होगा. अब मैं कह रही हूँ कि अगर सेंट्रल एंगल सेम है, दैट मीन्स ये दोनों आर्क सेम होंगी. क्लियर विथ दिस कंसेप्ट? नो डाउट? ओके. So shall we take with our first problem? In the given figure, it's an equilateral triangle. So I'll zoom a bit so that we all can see it clearly. So this is 60 entirely, and this is 60 because it's an equilateral triangle. ABC is inscribed in a circle with center O. Find BOC. You have to find BOC. Now what you will do? You have written that angle A, angle B and angle C are 60 because these are equilateral triangle. What will be OBC? See, because it's an equilateral triangle, what will happen? Your BO and CO will be the bisectors of angles. That means ये पूरा 60 है तो ये 30 हो जाएगा and ये 30 हो जाएगा. Got my point clear? And now if you want, you can go in smaller triangle BOC. In that what you will write? Angle sum property में हम कैसे लिखेंगे? Angle OBC plus angle OCB plus angle BOC is equal to 180. Now these are the proper names, the full names. Usually what kids write? Kids write angle B, angle C, angle O. Not write like this you should write. You should write the proper names of the angles, full names of the angles. Okay? Now OBC we got 30. OCB is also 30. And you have to find BOC. Okay? And this is 180 here because the addition of all the angles is equal to 180. Okay, then you have 60 plus angle BOC is equal to 180. From there, you will get the value of BOC as 120. Am I correct? But I have written the half problem. First, you have to make these angles 30. How did you make it these 30? First, you took that triangle ABC is an equilateral triangle given. And if it is an equilateral triangle, therefore OB and OC are angle bisectors. Angle bisectors का मतलब क्या होता है?
कि आपके पूरे एंगल को डिवाइड इन 2 करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा 60 था, 30-30 बन गया, बात क्लियर। फिर हम छोटे वाले ट्रायंगल में, अंदर वाले ट्रायंगल में गए। क्लियर विथ दिस? यू हैव टू फाइंड OBC। नेक्स्ट इज OBC। तो हमने OBC तो 30 पहले ही बना दिया है। सो पूरा B एंगल आपका 60 था, देयरफॉर एंगल OBC इज हाफ ऑफ 60, दैट इज 30 डिग्री। वो तो हमने पहले ही बना दिया है। ओके, क्लियर विथ दिस? Let's go on to our next problem. Let's see what it says. It says that in the given figure a square is inscribed in a circle. तो एक सर्कल के अंदर स्क्वायर है और वो सर्कल का सेंटर O है. You have to find BOC. Okay. हम लोग क्या करेंगे? Let's see. First to bit I'll zoom a screen so that we can see what exactly the things are. This is 90 degree, this is 90 degree, this is 90, this is 90. Why 90? Because this is a square. So each angle will be 90. Now do you know that the diagonal of a square is an angle bisector also? That means अगर पूरा एंगल B 90 है तो ये आपका 45 हो जाएगा और ये भी आपका 45 हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आपको इस ट्रायंगल में जाना है तो बेस एंगल्स 45 मिल गए, सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करेंगे? सो इट विल बी 45 प्लस 45 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180. फ्रॉम देयर यू हैव टू फाइंड एंगल BOC दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो BOC आपको 90 आ गया, यहाँ पे लिख लो 90. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड OCB. आई विल इरेज दिस पार्ट. ओके, अब देखेंगे OCB कहाँ है. OCB तो हम 45 पहले ही कर चुके थे. सो यू कैन डायरेक्टली राइट 45. वाई 45? बिकॉज द डायगोनल्स AC इज एंगल बाइसेक्टर, इज एन एंगल बाइसेक्टर. तो अगर वो एंगल बाइसेक्टर है तो पूरे C को वो डिवाइड करता है 2 हाफ्स में. पूरा C कितना है? 90 डिग्री. सो दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 45. नेक्स्ट इज COD. पहले इसको इरेज कर देते हैं. नाउ लेट्स फाइंड वेयर इज COD. COD बेटा आपको ये BOC 90 मिला है और COD उसका लीनियर पेयर है तो वो भी 90 हो जाएगा. इजंट इट ईजी? देन यू हैव BOD. अब BOD 90 प्लस 90 180 हो जाएगा. बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स हैं. देखिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में, लेकिन जब आप लिखेंगे तो ये करीबन आपका 1 पेज का प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग द थिंग्स. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन अ शॉर्ट, बट यू हैव टू प्रेजेंट इट ऑल्सो. वॉट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू राइट इट. लाइक you have made BOC is 90, so DOC will also be 90 because they are linear pair. Then BOD will be 90 plus 90, that is 180. So it's a straight line. Okay. BD is the diameter of circle or not? Yes, of course, BD is a straight line and it is passing through center, so it's a diameter. Next we have, in the given figure, AB is the side of pentagon. Now this AB is a side of pentagon. Pentagon matlab 5-sided structure. And BC is the side of hexagon. Hexagon matlab 6-sided structure. तो ये हुआ 6-sided, ये हुआ 5-sided. अभी ध्यान देना, जो 5-sided structure है उसका सेंट्रल एंगल, AB ने जो सेंट्रल एंगल बनाया उसको हम लिखेंगे 360 डिवाइड बाय 5. और जो 6-sided BC है उसने जो सेंट्रल एंगल बनाया उसकी वैल्यू आ जाएगी 360 डिवाइड बाय 6. आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? तो जो साइड आपका है AB और BC कौन से पेंटागन को कौन से पॉलीगॉन को बिलोंग करता है? क्या वो पेंटागन का साइड है, क्या वो हेक्सागन का साइड है? अगर वो पेंटागन का साइड है तो AB ने जो सेंट्रल एंगल बनाया है दैट विल बी 360/5. अगर वो हेक्सागन का साइड है तो BC ने, जैसे BC हेक्सागन का साइड है तो BC ने जो सेंट्रल एंगल BOC बनाया है तो BOC की वैल्यू आ जाएगी 360/6.
So please be very sure, this is very important problem. So 360 upon 5, 72 degree, 360 upon 6, 60 degree. तो मैं थोड़ा सा zoom कर देती हूँ. So you will get it. That means हम लोगों को क्या क्या मिला है? Let's write it down. We got this as 72 and we got this as 60. Perfect. Now what they are asking? They are asking to find AOB. We already got. They are asking to find BOC. We already got. They are asking to find AOC. अब AOC क्या होगा? आप इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 72 प्लस 60 मतलब 132. ये आपका आ जाएगा AOC. नेक्स्ट आ गया OBA. OBA ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल में OBA. मैं थोड़ा सा इसको बाहर ड्रॉ कर रही हूँ OAB को, ट्रायंगल को, तो थोड़ा आपको समझ में आएगा. आपको ये 72 है, आपको B फाइंड करना है. अब ध्यान यहाँ पे देना, AO इज इक्वल टू OB बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल. ठीक है, तो क्या मैं इसके बेस एंगल्स को XX ले सकती हूँ? तो जहाँ पे XX ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो हम कैसे लिखेंगे? X प्लस 72 इज इक्वल टू 180. तो ये बन जाएगा 2x प्लस 72 इज इक्वल टू 180. आ रही बात समझ में? और ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 72, वहाँ से आ जाएगा 108. x इज इक्वल टू 108 अपॉन 2 मतलब 54. तो आपके पास ये आ गया 54, ये आ गया 54, मतलब OBA ये वाला एंगल जो हम ढूंढ रहे थे ये आ गया 54. नेक्स्ट इज OBC. सिमिलरली OBC, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल OBC बना रही हूँ. OBC ये सेंट्रल एंगल उसका 60 है. अगेन ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो हम इसको x और इसको x ले सकते हैं. अब फिर से हम लोग यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी से जाओ. x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 और वहाँ से हम लोग को फाइंड करना है x की वैल्यू, तो वो बन जाएगा OBC. वो भी आपका आएगा 60 डिग्री. क्लियर? उसके बाद है ABC. अब ABC आपको फाइंड करना है ये पूरा. तो आप ध्यान देना, आपके पास OBA मैं येलो से मार्क कर रही हूँ तो आपको क्लियर होगा. OBA आपके पास आया है 54, एम आई करेक्ट? और OBC आपके पास आया है 60 डिग्री. इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा ABC. आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट we have AOB is equal to 48. ओके, शायद मैं क्वेश्चन मिस आउट कर रही हूँ, आगे जूम करना पड़ेगा. एक मिनट, आई जस्ट जूम इन. ओके, सो इट इज गिवन इन द गिवन फिगर आर्क AB एंड BC आर इक्वल इन लेंथ. ठीक है, अब बात समझ में आई कि इक्वल लेंथ के हैं. अब चाहे तो जूम आउट कर दें. सो AB and BC equal in length hai. And what we have studied before the session, at the start of my video, what did I gave you the theorem that if the chords are equal, then they will subtend equal angle at the center. So can I say these both angles are same? तो अगर ये 48 है तो COB भी BOC भी 48. रीज़न आपको लिखना है. What reason you will write? If the arcs are same, the angle subtended by them at the center will also be same. Now you have to do OBC. अब आप इसी ट्रायंगल को कॉन्सेंट्रेट करो. OBC. ध्यान यहाँ पे देना है कि OB और OC रेडियस है. सेंट्रल एंगल आपके पास 48 है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा. मतलब आप कैसे जाओगे? x प्लस x बेस एंगल्स प्लस 48 सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 180 और वहाँ से आपको निकालनी है x की वैल्यू, तो वो बन जाएगी OBC. आई बात समझ में? तो ये OBC की वैल्यू आ गई. AOC क्या हो जाएगा आप बताओ? AOC विल बी एडिशन ऑफ AOB प्लस BOC मतलब 48 प्लस 48. Yes, I am not writing the entire presentation. You have to present your answers very well. You will not get marks like this as the way I am presenting. No, you have to present it in a very nice sense. एक एक चीज़ आपको लिखनी है. Then OAC. अब ध्यान देना, we have OAC. ये वाला एंगल फाइंड करना है. अब क्या करेंगे? अब सिर्फ OAC ट्रायंगल को ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो. AO और OC इसके रेडियस हैं,
कैन आई कीप दिस एंगल बेस एंगल एक्स एक्स, और ये सेंट्रल एंगल AOC तो आपका 48 + 48 हो गया है ना, तो दैट विल बी 96। तो सेंट्रल एंगल आपके हाथ में 96 आ गया। अब ये बेस एंगल्स एक्स और एक्स, OAC, तो आप लिखोगे कैसे, इन ट्रायंगल AOC एंगल OAC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल OCA इज इक्वल टू 180, क्योंकि बिकॉज AO and OC are radius of same circle, they are equal, hence this triangle will become isosceles, hence the base angles will be same। मतलब OAC और OCA हम दोनों को x लिख सकते हैं, और सेंट्रल एंगल हमारे पास 96 आया है, तो हम लिखेंगे x + 96 is equal to 180। From there we will get the value of x, that is your angle OAC। Getting my point clear? सो OAC आपको वहाँ से आएगा। लेट्स जंप ऑन टू नेक्स्ट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ आर्क AB एंड BC आर इन द रेशियो 3:2। तो AB और BC में रेशियो है 3x और 2x। तो जैसा उनका रेशियो है, अगर वो एंगल सेंट्रल एंगल बना रहे हैं तो वो सेंट्रल एंगल भी उसी रेशियो में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब सेंट्रल एंगल AOB हम लोग को 96 दिया हुआ है, AOB हम लोग को 96 दिया हुआ है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ 3x, क्योंकि वो AB का हम लोग को रेशियो है 3x और उसने जो एंगल बनाया 96 है, तो कैन आई राइट 3x इज इक्वल टू 96। फ्रॉम देयर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो उनके साइड्स का रेशियो होता है वही उनके एंगल का रेशियो होता है। तो 3x अगर AB का रेशियो है तो AB ने जो एंगल बनाया उसका रेशियो भी 3x ही होगा। तो कैन आई राइट 3x इज इक्वल टू 96, क्योंकि एंगल AOB की वैल्यू दी हुई है। सो 3x इज इक्वल टू 96। फ्रॉम देयर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x 32। जैसे ही मेरे पास 32 आया तो इसका क्या है, 2x है, क्योंकि BC का वैल्यू 2x दिया हुआ है और BC ने जो सेंट्रल एंगल बनाया BOC वो भी हमारा 2x हो जाएगा, राइट। 2x मतलब 2 × 32। आई बात समझ में, दैट विल बी 64। तो ये आपको डिग्री आ गया 64। तो आपको बोला है फाइंड BOC, तो BOC हमारे पास ऑलरेडी आ गया, ये BOC ही हमने फाइंड किया है। सो BOC इज 64। नाउ यू हैव टू फाइंड ABC फाइंड करने के लिए आपके पास दो एंगल्स होने चाहिए। देखो मैं रेड पेन से दो सर्कल्स बना रही हूँ, ये दो एंगल्स आपको चाहिए। अब क्या करेंगे, अब पहले जाओ AOB में, सेंट्रल एंगल 96 है, ये दोनों रेडियस हैं, तो बेस एंगल्स x और x लेकर x फाइंड करो। फिर आप जाओ BOC में, सेंट्रल एंगल 64 है और ये भी फिर से क्योंकि रेडियस है तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बेस एंगल्स y और y लेकर y फाइंड करो। गेटिंग माई पॉइंट। जैसे ही आपके हाथ में x और y आ जाता है, मतलब ये दोनों एंगल्स आ जाएंगे, उन दोनों को आप ऐड करोगे तो यू विल गेट ABC। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। द एंटायर चैप्टर इज जस्ट एंगल सम प्रॉपर्टी में ज़्यादा जाना है, और जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी स्टार्ट ऑफ द सेशन से कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो इक्वल सबटेंड करेंगे एंगल्स एट द सेंटर। अगर उनका कोई रेशियो दिया हुआ है, जैसे 3:2 रेशियो दिया हुआ था पहले प्रॉब्लम में, इसी प्रॉब्लम में, तो 3:2 में हम लोग को जैसा उनका कॉर्ड्स का रेशियो होगा, आर्क्स का रेशियो होगा, वैसा ही रेशियो उनके सेंट्रल एंगल का भी होगा। तो जो 96 दिया हुआ था वो 3x AB से बना हुआ एंगल था, तो वो 3x था, तो 3x इज इक्वल टू 96। वहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली और वो मैंने 2x में डाल दी, तो 2x का मतलब जो BC ने एंगल बनाया वो सेंट्रल एंगल उसका हो गया। अब सेंट्रल एंगल 96, वो छोटा सा ट्रायंगल ले लो, क्योंकि रेडियस सेम है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, उसके बेस एंगल्स फाइंड करो। और फिर यहाँ से आपने सेंट्रल एंगल 64 ले लिया और उसके बेस एंगल्स आपने y रखे, तो वहाँ से y फाइंड करो। अब आप नोटिस करोगे कि ABO प्लस OBC x प्लस वाई, मतलब x की जो वैल्यू मिली और y की जो वैल्यू मिली वो आप ऐड करोगे तो आपके पास ABC आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव, इट इज़ गिवन दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD। मतलब ये तीनों अगर कोई सेंटर एंगल बना रहे हैं तो वो इक्वल है। अगर मैंने इन तीनों को x रख दिया, अब यहाँ पे बोला है AOB इज़ 50, तो अगर ये 50 है तो ये वाला x भी 50, ये वाला x भी 50, मतलब ये टोटल क्या बन जाएगा, ये टोटल बन जाएगा 150।
अगर आपसे पूछा गया AOD पूरा एंगल तो आप क्या बोलोगे 150। AOC बोला, अभी AOC, अभी एक एक सेंट्रल एंगल 50-50 बन गया ना, तो ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है। अब AOC पूछा है तो सिर्फ ये 50 और ये 50, दो 50 को ऐड करोगे तो AOC आ जाएगा, तो दैट इज़ 100। फिर आपसे BOD पूछा है, BOD, अब BOD में आपके दो 50s आते हैं राइट, सो उन दोनों को ऐड करोगे तो 100। OAC, अब यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देंगे। OAC ये वाला एंगल पूछा है। अब ये दोनों को मिला के आपके पास 100 है यहाँ पे। फिर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये x हो गया, ये x हो गया। मतलब प्रॉब्लम क्या बन गया, 100 + x इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 40। तो आपके पास आ गई OAC की वैल्यू एज 40। फिर आपसे पूछा है ODA, अब मैं थोड़ा सा इरेज करूँगी। ODA मतलब ये वाला ट्रायंगल, ODA ये वाला एंगल पूछा है। अब यहाँ पे सेंट्रल एंगल आपके पास है 150 करेक्ट, और OA रेडियस है, OD रेडियस है, मतलब ये आप x रख सकते हो, ये x रख सकते हो। मतलब OAD में आप जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 150 आ जाएगा, और बेस एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस से बना हुआ एक ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस बन जाएगा। सो दैट विल बी x + 150 इज equal to 180। फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 15 डिग्री, और x आपने किसको रखा था, ODA को, इसको, तो ये हो गया 15 डिग्री। आ रही बात क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 7th। लेट्स सी व्हाट इट सेज। प्रॉब्लम नंबर 7th में है आपका, इन द गिवन फिगर AB इज अ साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागॉन। ध्यान पूरा इधर देना, AB आपका साइड ऑफ हेक्सागॉन है, मतलब 6 साइडेड है। तो AB ने जो सेंट्रल एंगल बनाया वो हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 6, मतलब 60 डिग्री। मतलब आपके पास एंगल AOB कितना आ जाएगा, एंगल AOB आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लो 60 डिग्री। उसके बाद आपका दिया हुआ है AC इज द साइड ऑफ 8 साइडेड पॉलीगॉन। तो AC आपका 8 साइडेड है, तो उसने जो सेंट्रल बनाया AOC वो हो जाएगा 360/8। एम आई करेक्ट विथ दिस? दैट इज वो आपका आ जाएगा 45 डिग्री। तो AOC आपसे पूछा है 45 डिग्री आ गया आपका। अब आपसे पूछा है BOC। अब ध्यान दो, BOC तो पूरा एंगल है ना, आई एम मार्किंग विथ येलो। तो BOC क्या है, BOC बना हुआ है AOB से और AOC से। AOB तुम्हारे हाथ में है, AOC तुम्हारे हाथ में है, इन दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हारे हाथ में क्या आ जाएगा, BOC। और पूछा है OBC। अब फिर से मैं थोड़ा इरेज करूँगी। सेंट्रल एंगल 60 + 1 ये आ गया है 45, दैट इज़ 105 आपके हाथ में है सेंट्रल पूरा एंगल। थोड़ा सा जूम कर दें। ये पूरा एंगल आपके पास है 105। नाउ यू हैव दिस ट्रायंगल and this is what, radius. You will put this as x, this as x, so you will write x plus 105 is equal to 180. From there get the value of x। जो value of x मिलेगी वही तो आपकी है OBC पूछा था ना, OBC। Clear with this? Okay, for the last problem you give a try, you will get it. Okay, shall we pack up here? God bless.